Hello bachcho, welcome back to my channel. Dear students, today we are going to start the next topic of the projectile motion, which is the projectile given horizontal projection. But in our last lecture, we have discussed about the projectile motion given the horizontal projection. Okay, horizontal projection and angular projection. The difference I have already cleared, but still I will do it again. Okay, so देखो horizontal projection का mean क्या है? Horizontal projection means when a body is thrown with some horizontal velocity u. ठीक है, means उसे किसी एंगल पर थ्रो नहीं किया है. It is thrown with some horizontal velocity u, and in that case the body is coming down under the effect of gravity alone. Okay, and what is the angular projection? Angular projection means when a body is thrown with some velocity u at an angle theta to the horizontal. जब आप किसी एंगल पर थ्रो करोगे, at that moment the body will go firstly somewhat up, ठीक, and then comes down due to the effect of gravity. Okay, so since the object is being thrown at some angle theta, that is why such kind of motion is known as angular projection. Okay, so let's do it in detail. So for this, let us consider an object is thrown at an angle theta with the velocity u as shown, right? That this is the velocity u, initial velocity u with which the object is thrown upward, right? In that case, the body will go up and then comes down, right? Now since it is at angle theta, so it will be having two combined velocities, means the projectile is moving under the effect of two combined velocity. One is the horizontal component and one is the vertical component. See, so we resolve it. This is u cos theta and this is u sin theta. Means ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta. ठीक है, क्या है ये ux is equal to u cos theta कैसे आया बच्चे? आप लोगों ने पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि लेट अस कंसीडर दिस इज u एंड दिस एंगल इज थीटा, राइट? एट दिस पॉइंट अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ ux, राइट? नाउ बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर होता है? cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना? cos थीटा के बराबर होता है. तो हमारा बेस क्या है? ux. हाइपोटेनस कितना है? u इज इक्वल टू cos थीटा. देयरफॉर ux किसके बराबर आ गया? u cos थीटा. So that is why horizontal component of initial velocity is equal to u cos theta. ठीक है. सिमिलरली अगर ये कंपोनेंट इसका है वर्टिकल कंपोनेंट uy, तो uy कैसे निकालेंगे? uy is equal to uy by u, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है, तो uy किसके बराबर आ गया? u साइन थीटा. यही तो लिखा है हमने कि दिस velocity, this projectile is moving under the combined effect of two velocities, one along the horizontal and another along the vertical. ठीक है, I hope this is clear. As we have already assumed this thing in the previous lecture that the projectile is moving such that its horizontal component of velocity always remain constant. Means अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, this component is u cos theta. This is origin O. Let at time t is equal to 0. तो किसी भी टाइम पर if we observe this component u cos theta will remain same. Okay, because we have ignored the effect of air resistance, right? So this is u cos theta, u cos theta and u cos theta. Means horizontal component will always remain same. So if ux is equal to u cos theta, which is constant always, right? तो ax क्या होगा? 0 होगा. Means acceleration of the particle along the horizontal direction will be 0. क्यों? क्योंकि horizontal direction में velocity क्या है? Constant है. I hope this is clear. ठीक है. Now vertical component की अगर हम बात करते हैं at this point, ठीक है, at time t is equal to 0 की बात अगर हम करते हैं तो uy कितना है? u
साइन थीटा। लेकिन अगर हम टाइम टी की बात करते हैं, देखो वर्टिकल कंपोनेंट इसका चेंज हो रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, लेट दिस इज वी एक्स एंड दिस इज वी वाई, है ना। हम क्या करते हैं कि हम इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से, और किसी फाइनल वेलोसिटी एट एनी टाइम t हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी v से, ठीक है। तो लेट एट टाइम t अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी vx है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, vy, राइट। तो जो vx है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एज आई टोल्ड अर्लियर कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। क्यों चेंज हो रहा है, लेट अस डिस्कस दैट। देखो अब ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, इन दैट केस क्या होगा, ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी उसको नीचे खींचना चाहती है, तो उसकी वेलोसिटी उसको लेके जा रही है ऊपर, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, तो उसकी वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट आएगा, कम होगी ना। जैसे मान लो कि आप आगे की तरफ भागना चाहते हो, ठीक है ना, आप आगे की तरफ भागना चाह रहे हो और आपका फ्रेंड आपको खींच रहा है, तो आपकी स्पीड को क्या इफेक्ट आएगा, स्पीड पर, स्पीड कम हो जाएगी। तो यही केस यहाँ हो रहा है ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट उसे पीछे खींचना चाहता है, नीचे खींचना चाहता है, तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो यहां से यहां जाते 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 यहां तक उसकी वेलोसिटी हो रही है डिक्रीज, ये यूं जा रहा है, जाता जाता वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी जीरो। कौन सी वेलोसिटी जीरो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, यस द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी जीरो। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अभी भी है, ये है, इसलिए प्रोजेक्टाइल इधर आ रहा है। अगर ये u cos थीटा ना होता तो ये प्रोजेक्टाइल नीचे गिर जाता। बात समझ आ रही है। तो ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लेकिन क्योंकि ये हाइट पर है तो यहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो गई जीरो, और यहाँ नीचे आते हुए अब ये अलोंग ग्रेविटी ही आ रहा है। वी की डायरेक्शन देखो किधर है, वी की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, यानी कि ग्रेविटी के अलोंग। इसका मतलब वो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही है। तो यहां से हमने क्या डिस्कस किया कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वो डिक्रीज करेगा हाइट पर जीरो, एंड देन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। सो सिंस uy इज u sin थीटा, एंड क्योंकि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो उसमें क्या आ रही है, एक्सेलरेशन। क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन आ रही है तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे। नाउ द अनदर पॉइंट देखो, यहां जब ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, बॉडी नीचे खींच रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वो मोशन कौन सा होता है, रिटार्डेड मोशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, राइट। तो अगर हम मान ले कि यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, तो यहाँ पर ay की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यस इट शुड बी नेगेटिव g, राइट। सो ay क्या है, -g। इस पॉइंट पर अगर हम कोई पॉइंट यहां कंसीडर करेंगे, यहां कहीं कहीं भी इस पाथ में, तो इन दैट केस ay की वैल्यू होगी +g। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो ux u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा हमेशा ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, और ay की वैल्यू +g या -g डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट जहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। सो एज वी हैव कंसीडर्ड द पॉइंट P हियर, तो हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी इक्वेशंस ऑफ पाथ लिखेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली वी राइट along the horizontal direction, ठीक। in that case our equation will be x is equal to uxt plus half axt square, right। ux कितना है, ux is u cos theta, ठीक है, which is always constant। ux is equal to u cos theta into t, right, plus 1/2 ax कितना है, ax is 0, so 0। तो x कितना आ गया, x is equal to u cos theta into t, or we can say that
जो t की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू x बाय u cos थीटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, राइट। आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। सो दिस इज व्हाट इज दिस, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ux कितना है, u cos थीटा, ax कितना था 0 पुट कर दिया, x आ गया u cos थीटा इंटू t। सो t की वैल्यू निकाल दी हमने x अपॉन u cos थीटा, राइट। नाउ लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर द y एक्सिस। सो फॉर y एक्सिस मींस फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट। सो y इज इक्वल टू u बाय टी प्लस हाफ a बाय टी स्क्वायर। नाउ y इज इक्वल, देखो u y कितना है, u y इज u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 a y कितना है माइनस जी क्यों है, बिकॉज वी आर टेकिंग द पॉइंट P ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, राइट। तो राइट हियर 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ गया y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, राइट। सो पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम दिस इक्वेशन, right, this equation into there, okay. So y is equal to u sin theta into x by u cos theta minus 1/2 g x square by u square cos square theta, right। Now in this case you can see here clearly y is written as u tangent theta, u से u cancel हो जाएगा, we are left here with x tan theta, x tan theta minus 1/2 gx square by u square cos square theta, which is again the equation of parabola. It means that the path followed by the projectile, either it is in horizontal direction or it is given angular projection, it is always a parabolic path, okay. Now let's find out other variables like time of flight, horizontal range, maximum height and velocity at any instant for this type of motion. So firstly we will do the time of flight, okay. Let us understand what is the time of flight. Time of flight क्या हुआ, the time for which the projectile remains in air, ठीक है। Time of flight during which the projectile remains in air, ठीक है। Let us consider ये जो हाइट है, दिस हाइट मीन्स दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लेट वी नेम दिस O, दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस हाइट इज H, राइट। एंड लेट वी टेक दिस इज द असेंडिंग मोशन एंड दिस इज द डिसेंडिंग मोशन, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेट द टाइम ऑफ असेंट इज T एंड एज वी नो दैट क्लियरली दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली जितना इधर ले रहा है उतना टाइम लेगा। सो इट मीन्स द टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। सो लेट अस कंसीडर द टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टी, राइट। नाउ द टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम होगा टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि टाइम पीरियड t will be equal to 2t, or we can say that t is equal to t by 2, right? Now since its vertical component हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन फॉर द टाइम ऑफ लाइट, ठीक है। Now we know that at this point यहां से यहां जाते हुए vertical component of velocity 0 होगा, so for simplicity we can use the equation Vy is equal to Uy plus Ay t, right? देखो Vy क्या है, इस पॉइंट पर Vy की वैल्यू कितनी है 0, Uy की वैल्यू कितनी है, Uy तो ऑलवेज u sin थीटा, राइट। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो Ay कितना हो गया नेगेटिव माइनस जी इंटू टी, राइट। तो हमने इसको क्या किया, gt को दूसरी साइड ले गए, सो gt इज इक्वल टू u sin थीटा और t इज इक्वल टू u sin थीटा बाय g, right? Now what is small t? That is equal to t by 2.
तो टी की जगह हमने पुट कर दिया t/2 इज इक्वल टू u साइन थीटा बाय जी, राइट। और वी कैन राइट दैट t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। So this is the expression for the time of flight, right? So कैसे हमने time of flight find out किया? For finding out the time of flight, we divide this time into two intervals, time of ascent and time of descent. Since it is symmetrical about height, so we can say that time of ascent is equal to time of descent. Let me take the time equal to t. So in that case हमारे पास जो इक्वेशन यूज करेंगे vy is equal to uy plus at. Why vy? Because vy 0 है तो it will be more simpler equation, right? तो यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल दी 2u sin theta by g, right? Now let us find out the equation for horizontal range, right? देखो horizontal range कैसे निकालेंगे? horizontal range क्या है? horizontal range है distance traveled horizontally. अब जब हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहे हैं तो कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए? यस, दैट इज u cos थीटा। अब देखो स्पीड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता है तो व्हाट फॉर्मूला यू यूज? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सिंपल। अब देखो आपके पास डिस्टेंस क्या है? OB। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है? OB, राइट। तो इन दैट केस आप लिखोगे क्या? हॉरिजॉन्टल रेंज OB, इसे हम नाम दे देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। सो दैट इज इक्वल टू OB। और कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का इधर? हॉरिजॉन्टल, विच इज ux। और यहां से यहां आने में उसको कितना टाइम लगा? right, that is the time period t. So we put it capital T. Now what is ux? Ux is u cos theta into t, right? So now we can put the value of t from here. So what is that? u cos theta into 2u sin theta by g, or we can write it as 2u sin theta cos theta by g. Now you know the famous formula 2 sin theta cos theta किसके बराबर होता है? 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. So we write here this is u, right? U square, u1 and this one also. So this is u square. U square, this is sin 2 theta, right, by g. तो ये आ गया आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला. व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज? दिस इज u square sin 2 theta by g. I hope horizontal range is also clear. क्या करना है हमें? horizontal range मतलब हमें linear distance निकालना है, और linear distance के लिए we will use the linear velocity component u cos theta, and time कितना लेंगे? क्योंकि total range निकालनी है तो total time period, so we multiplied it by t. t किसके बराबर है? t is equal to 2u sin theta, so we put here and find out the value of horizontal range, right? Now see there, we write it here. So r का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है u square sin 2 theta by g, right? Now see, there are two different angles for which the horizontal range is same. And what are that angles? That are theta and 90 minus theta. Okay, see, जब आप वैल्यू थीटा पुट करोगे तो इन दैट केस आर आएगा आपके पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, राइट? अब अगर आप 90 माइनस थीटा पुट करते हो तो रेंज कितनी आएगी? लेट दिस इज r1 एंड दिस इज r2. सो u स्क्वायर साइन ऑफ, राइट, 2, दिस इज थीटा की जगह पुट करेंगे 90 माइनस थीटा बाय g. सो दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा बाय g. सो साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू साइन थीटा. सो क्योंकि हमारे पास थीटा किसके बराबर है? 2 थीटा के बराबर है ना, तो वी राइट हियर r2 इज इक्वल टू u स्क्वायर अगेन साइन 2 थीटा बाय g. इट मीन्स क्या कहेंगे हम? इट मीन्स r1 इज इक्वल टू r2 फॉर एंगल्स थीटा एट 90 माइनस थीटा. मीन्स अगर आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो 90 माइनस 30 कितना हो गया? 60 डिग्री.
तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए एंगल्स, दोनों एंगल्स के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। सिमिलरली इफ वी टेक अनदर एंगल लाइक 15 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितना होगा 75 डिग्री। सो इन दोनों एंगल्स के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम। Okay, I hope the horizontal range is clear to you. Now let us find out the expression for the maximum height attained. Okay, so for that, क्योंकि हमें height निकालनी है, so height के लिए we will be using equation of vertical motion, right? So y is equal to u by t plus half a by t square. u y is u sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट है, इनिशियल कंपोनेंट है तो u sin थीटा, t प्लस 1/2 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमें हाइट निकालनी है तो हम यही वाला वर्टिकल मोशन ले रहे हैं यहां तक। तो जब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इन दैट केस -g इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि y निकाल रहे हैं मतलब y मतलब मैक्सिमम हाइट, तो कितनी हाइट ली है, y की डिस्प्लेसमेंट कितनी है h, तो हमने y की जगह लिख दिया h, राइट। अब देखो अगर कैपिटल T 2u sin थीटा बाई g है तो स्मॉल t कितना होगा, स्मॉल t होता है t बाय 2, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू u sin थीटा बाय g। क्योंकि हम यहां से यहां तक का टाइम ले रहे हैं तो दैट टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट ओनली, ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर स्मॉल t पुट करेंगे, कैपिटल T नहीं पुट करेंगे, राइट। कैपिटल T तब पुट किया जाता है जब आप पूरे मोशन का टाइम पीरियड यूज कर रहे हो। आपको हाइट निकालने के लिए एसेंट मोशन इज सफिशिएंट, तो वी विल बी यूजिंग स्मॉल t की वैल्यू हियर। सो पुट u sin थीटा, स्मॉल t आ गया आपके पास, u sin थीटा अगेन, u sin थीटा बाय g -1/2 इंटू g, t की वैल्यू आ गई u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, राइट। एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, वी आर लेफ्ट विद यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, ठीक है, मैं यही अमेंड कर देती हूँ इसको। सो वी आर लेफ्ट हियर विद यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, एक जी से एक जी कैंसिल हुआ तो वी आर लेफ्ट विद यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, साथ में 1/2 अगेन। सो ये बन जाएगी इक्वेशन माइनस ऑफ 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। अगर आप एलसीएम लेते हो तो 1 - 1/2 कितना हो गया, 1/2, राइट। तो आपके पास हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। सो इट इज वेरी सिंपल, हाइट निकालनी है, हाइट निकालने के लिए आपने क्या किया, वर्टिकल मोशन लिया अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ए वाई जो होगा वो नेगेटिव होगा, -g होगा, एंड वी पुट द वैल्यू, क्योंकि आधा मोशन ले रहे हैं, ओनली टाइम ऑफ असेंट ले रहे हैं, तो t की जगह स्मॉल t यूज होगा, नॉट द कैपिटल T। तो हमारे पास हाइट का फॉर्मूला आ गया h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो दैट्स इट। नाउ फाइंड आउट द कंपोनेंट वेलोसिटीज एट एनी टाइम t, राइट। नाउ लेट अस कंसीडर, यहां पर हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Vx और ये कंपोनेंट है Vy, ठीक है ना। तो अब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हियर Vx, दिस इज Vy, इसका रिजल्टेंट आएगा V। सिंस बोथ आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, तो V की वैल्यू यानी कि एट एनी इंस्टेंट V की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। कैसे आएगी, बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if two vectors are acting by the two sides of a parallelogram taken two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given by the diagonal। और फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और वो थीटा एंगल किसमें होता है, a और b में। अब हमारे पास a क्या है Vx, b क्या है Vy, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। सो cos 90 कितना हो गया 0, तो cos 90 0 हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद Vx स्क्वायर एंड Vy स्क्वायर, ठीक है। तो अब Vx तो किसके बराबर है, देखो Vx तो है ही ऑलवेज, Vx क्या है u cos थीटा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो Vx इज इक्वल टू u cos थीटा, और Vy कैसे निकालेंगे, Vy निकालेंगे हम uy
प्लस ए बाय टी। अब देखो, अब यहां पर हमने वी वाई को 0 पुट नहीं करना, राइट, क्योंकि वी वाई की वैल्यू 0 यहां पर है, सिर्फ यहां पर। बाकी सब जगह वी वाई की वैल्यू है, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर डिक्रीज करती जा रही है, यहाँ से इंक्रीज करती जा रही है। सो वी वाई कैसे निकालेंगे? सो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, क्योंकि ये पॉइंट हमने असेंडिंग मोशन में लिया है तो ए वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी, सो दिस इज माइनस जी टी। नाउ वी कैन पुट these two values in this expression, so v will be, इधर लिख देते हैं, so v is equal to root of vx square plus vy square, so this is equal to root of u cos theta whole square plus u sin theta minus gt whole square. So we can open it and find out its simplified relation. So I hope projectile motion is clear to you everyone. While doing the derivation, what you should keep in mind is कि during the projectile motion, horizontal velocity always remain constant. That is why ax की value always 0, right? Vertical velocity keep on changing, so that is why ay की value is always g, either positive or negative. It will depend upon कि आपने point of observation किस पाथ पर लिया है, ऊपर अपवर्ड मोशन में या डाउनवर्ड मोशन में। इफ यू आर मूविंग अपवर्ड, ए वाई इज माइनस जी, इफ यू आर गोइंग डाउनवर्ड, ए वाई इज प्लस जी, राइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वी विल यूज द इक्वेशन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। एनी अदर मेथड यू कैन अडॉप्ट, बट दिस इज द सिंप्लीफाइड बिकॉज वी वाई यहाँ पर 0 हो जाता है, तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए वी यूज द फॉर्मूला S is equal to ux into t, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। हाइट निकालना है, हाइट का मैक्सिमम हाइट यहां तक लिया था, इसलिए टाइम ऑफ असेंट यानी कि टाइम की वैल्यू स्मॉल t लिया था, फुल टाइम t नहीं लिया था, बिकॉज अदरवाइज हम पूरे हाइट के लिए निकालते, राइट। तो यहां तक मोशन लेके वी कैन इजिली फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। Okay, so I hope dear students this topic is clear to you everyone. So for the next video keep watching my channel. Thank you and have a nice day.